جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سید صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جی حضرت میں بول رہا تھا وہ کچھ آڈیو آیا ہے اسی میں میں پوچھ رہا تھا یہ آڈیو آپ کا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے، جی حضرت. ایک گروپ بنا ہوا ہے جی تحریک خاکساران حق. جی اس گروپ میں کچھ نیم رافضی بھی جی جی ہیں. میں معلوم ہے. تو اس گروپ کو ڈیلیٹ کر دیا ہوں، جی جی گروپ سے اپنا آپ کو لفٹ کرا لیا ہوں. جی تو اس گروپ میں اعلی حضرت اور صحابی رسول کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی. جی حضرت. ان لوگوں کی طرف سے جتنے سوالات آئے میں نے سب کے جوابات دے دیے. جی حضرت. آخر میں نے کچھ سوالات قائم کیے جی جس کا جواب ان لوگوں سے نہیں بن پایا. تو جب جی نہیں بن پایا، جی یہاں تک کہ ان لوگوں نے اعلی حضرت سرکار کو معاذ اللہ ملعون کہا، ہاں اور بھی بہت اور یہ بھی کہا کہ احمد رضا جسے کافر کہتے ہم اسے کافر نہیں مانتے، اور وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کہا. احمد ہاں. رضا کوئی رسول ہے کیا، اس طرح کی بات ان لوگوں نے بہت سارے کی. جی حضرت. تو میں نے اس پر کچھ سوالات قائم کیے. جی تو ان لوگوں سے جی میرے سوالات کے جوابات نہیں بن پائے. جی حضرت. تو کھسیا کر وہ لوگ مجھے یہ جی لکھ کر بھیجے جی کہ تم نسیمیوں کا کھاتے ہو پیتے ہو، اور نسیمی لوگ چندہ دینا بند کر دیں گے تو تمہارا مدرسہ بند ہو جائے گا، جی اور تم ادھر کھاتے ہو، سمجھ گیا نہیں، اور تم جو ہے احمد رضا خان کی گیت گاتے ہو. تو اس طرح اور بھی بہت کچھ ان لوگوں نے مجھے لکھا. تو اس کے جواب میں نے یہ کہا جی کہ اسی لیے جی صاف لفظ میں سن لو، جی مجھے چھیڑنے کی کوئی بھی شخص کوشش نہ کرے. نہ کرے. میں نہ نسیمی مدرسے میں پڑھاتا ہوں، جی نہ نسیمی مسجد میں امامت کرتا ہوں. آپ لوگ بھی اچھا. جانتے ہیں جی 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 اڑیسہ بالکل. میں نے دارالمجاہد ملت میں پڑھایا، جی جی جامعہ کرامتیہ جالسر میں پڑھایا، اور گراپور میں جو جامعہ حبیبیہ رضویہ اس میں پڑھایا. جی اور اب تک میں نے تو کہیں امامت نہیں کی. ادھر چند روز سے وہ عیدگاہ مسجد میں جمعہ جی جی کے دن میں خطبہ دینے جاتا تھا. جی 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 تو یہ بات میں کہا، میں اس لیے کہنا چاہا تاکہ جانے کہ بھائی آدمی جو ہے جی اپنی حضرت. محنت کی کمائی کھاتا جی ہے. جی اس کا پھر میں نے یہ کہا جی نہ نسیمی چندے سے میں صرف چلتا ہوں. اپنے ادارے کو چمکاتا ہوں. جی آج بھی میرا ادارہ ان لوگوں کے چندے سے چل رہا ہے جو جی حضور تاج الشریعہ سے مرید ہیں اور جی ان سے جوڑے ہیں جی اور انہیں اپنا پیر سمجھتے ہیں. جی تو دیکھیے میں نے کیا کہا، نہ نسیمی چندے سے صرف اپنے ادارے کو چمکاتا ہوں. تو جی میں نے یہاں لفظ جو صرف جو کہا تھا اس کو ان لوگوں نے کیا کیا، کٹ کر دیا. آپ جی تو پورا ویڈیو سے اندازہ لگائے ہوں گے وہ کتنا ایڈیٹنگ کیے ہیں، ایک جی بات کو 2 بار 3 بار جی جی کر کے جو ہے وہ لوگ ریئل کر رہے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے. جی 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 تو ان لوگ کیا کیے، لفظ صرف کو کیا کر دیے، کٹ کر دیے. کٹ کر دیا. کٹ کر کے کیا کر دیا ان لوگوں نے، یہ کر دیا نہ نسیمی چندے سے اپنے ادارے کو چمکاتا ہوں. لفظ صرف کو کیا کر دیا ان لوگوں نے، کٹ کاٹ کر دیا. کاٹ جی دیا. جی کاٹ کر یہ ذہن دینا چاہے کہ گویا کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ادارے میں نسیمیوں کا کوئی چندہ نہیں ہے. ہے. حالانکہ اچھا. بات ایسی نہیں ہے. جی میرے ادارے میں نسیمیوں کا بڑا چندہ ہے، اس کے جی علاوہ جی دوسرے لوگ بھی چندہ دیتے ہیں. جی 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 ہر دیکھیے دینی مدرسہ ہے تو سب کا چندہ ہر لگتا ہے. سنی پیر کے سنیوں کا چندہ لگتا ہے. چندہ لگتا ہے. تو میں اس کو یہ بتانا چاہا کہ جی میرا ادارہ صرف نسیمی چندے سے نہیں چمکتا ہے
बल्कि ताजुश्शरिया के मुरीदों का भी चंदा उसमें शामिल है। तो जी उसने क्या कर दिया, उसको कट कर दिया, कट कर दिया। कट कर अच्छा दिया। जी अच्छा अच्छा, दूसरी बात आप बताइए, कट करके जोड़ दिया। मैं जी आपसे बात कर रहा हूं, जी जी तो जी मेरे मुखातब आप हुए ना दूसरे हुए? मैं हुआ। आप हुए। आप जी सुन्नी हैं तो मेरा जी मुखातब कौन हुआ? सुन्नी हुआ। सुन्नी हुआ। अगर अगर मैं देवबंदियों से बात करता हूँगा तो मेरा मुखातब कौन होगा? देवबंदी देवबंदी हो। होगा। जी तो जो शख्स मुझसे बात कर रहा था, जी जी उस शख्स से माने बात कर रहा था, मतलब वो तहरीरी तौर से लिख के ग्रुप में दूसरे के जरिए से मुझ तक पहुंचा रहा था, जी जी ठीक है ना? तो उस शख्स को जी। जसीपुर में कुछ औरतों ने बांध के मारा था। अच्छा उसकी वजह क्या थी? उस आदमी ने माँ को, माँ के साथ, बेटे के साथ, उसके रिश्ते के साथ जी घिनौनी हरकत की थी। की है। आप एक अच्छा वीडियो देखेंगे, पहले बहुत वायरल हुई, जिसमें औरतें घेर के जो उस शख्स को मार रही मार थी। रहे थे। अच्छा हाँ तो उसको मारने से पहले वहां और एक बार उसकी बीवी के साथ किसी मामले में झगड़ा हुआ, तो फंसा था। तो जी मैं उसको बतौर कर्ज के 40,000 रुपया दिया था, जी ठीक है? तो आज तक वो पैसा मुझको मिला नहीं। लौटाए। अच्छा तो वो इस वक्त जो है, वो औरतों से मार खाने के बाद वो राबजियों का सरगना और सरदार बना हुआ है। और अच्छा वही जो है मुसलसल आला हजरत सरकार को, अमीर माविया को, अबू बकर सिद्दीक वगैरह को जो है, जो चाहता है अपने तौर से वो दूसरे की जैसे बोलते लिख हैं। लिख के हम तक पहुंचाता है। तो हम्म। उसको मैं जब जब उसको मैं जवाब नहीं दे पाया, जब वो मेरे सवालात के जवाब नहीं दे पाए, और जी जी उसने मुझको फिर ये चंदाखोर, ये वो बहुत कुछ बोलने लगे, तो उसको मैंने जवाब में कहा, समझ रहे क्या नहीं? जी 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 हजूर। क्या कहा? तो मैं चंदे से चलता हूँ। मैंने नसीब। तुम्हारी मदद की, जी जी और तुम नमक हराम कौम हो, तुम कभी जी। एहसान नहीं मान सकते। मैंने उसको किसको कहा? कटिंग कर दिया वो राब जी को। उस राबजी को मैंने कहा, क्योंकि जी आज भी उस पर मेरा 40,000 रुपया है। जी समझ रहे जी क्या जी नहीं? जी वो जी जी। इनकार नहीं कर सकता है। जो आदमी अच्छा मुझसे ले जाके दिया है उसको, वो आदमी जी आज भी जी गवाही देगा। वो पैसा जी मुझ तक आया जी नहीं है। जी। तो उसको क्या किया, उस रिकॉर्डिंग को इससे क्या कर दिया, कटिंग एड करके बस एड कर बस दिया। ऐड कर दिया। ये अच्छा मेरी दूसरी वॉइस थी, जी उसको जी उसमें जी क्या हाँ कर दूसरी। दिया, जी ऐड जी कर दिया। करके लोगों को ये जहन देना चाहा कि मैंने नसीमियों को नमक हराम कहा। जी समझ रहे जी क्या जी नहीं? जी 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 तो इस तरह से जो है, जबकि अक्लमंद आदमी पूरा ऑडियो सुनने के बाद वो समझ जी सकते हैं कि जी क्योंकि मैं आगे चल के राबजी कह रहा हूँ। जैसे कि हाँ। मैंने आगे क्या कहा, मैंने अच्छा मदद की। हजरत वो रिकॉर्ड में राब जी का जिक्र भी नहीं है। अच्छा सुनिए ना, अच्छा अच्छा, मैं क्या कहा कि तुम जिससे आदमी बात करेगा उसी को ना तुम कहेगा। हाँ जी जी जी। अच्छा, फिर मैं क्या कहा, तुम नमक हराम तुम नमक कौम हो, हराम कभी कौम। एहसान नहीं मान सकते। समझ जी जी गए? जी हमें जी जी तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है, और न हाँ मैं तुम्हें कुछ समझता हूँ। जी जी समझ रहे? जी। और मैं जानता हूँ आजकल नसीमियों में बहुत से नीम राबजी हैं जो मुझसे खार खाए हुए हैं। अच्छा मैं क्या कहा, मैंने नसीमियों को नहीं कहा, नसीमियों में हैं। जैसे नसीबियों भाई में है। हाँ ठीक। हर गिरोह में किसी जी में जी देवबंदी घुसा हुआ रहता है, किसी में वहाबी घुसा रहता है, किसी में राबजी घुसा रहता है। जी ऐसा नहीं जी होता है क्या? जी तो जी मैंने कहा कि इस कुछ नीम राबजी घुसे हुए हैं जो जी हमसे खार खाए हुए हैं, जी क्योंकि उनके बाप अहमद हबीब शजर मकन पूरी का मैंने वाट लगा रखा है। इस तरह हाँ का मैंने जुमला कहा। तो हाँ लोगों हाँ। को तो यही समझ जाना चाहिए कि मेरा मुखातब जो है नसीमी नहीं बल्कि कौन है, वो राबजी है। राब जी है। तो मैं, वो जो मेरा पैसा लेके नहीं दिया, मेरे ताल्लुक से बुरा भला लिखा, तो जी मैं जी उसको नमक हराम कौम कहा। जी फिर जी मैंने कहा कि सिर्फ जो है नसीमी चंदे से इदारे को चमकाता नहीं जी हूं। तो जी उसमें सिर्फ को काट कर जो है, वो उसने कर दिया कि नसीमी चंदे से इदारे को नहीं चमकाता हूँ, सिर्फ को काट दिया। जी समझ रहे जी क्या नहीं? जी और मैं भाई आज तक जब किसी मस्जिद में, ये बात हमेशा क्यों कहता हूँ
کہ मैं किसी नसीब मस्जिद में इमामत नहीं की, किसी नसीब मदरसा में नहीं पढ़ाया, ताकि जी लोग समझे कि ये पैसे के लिए नहीं किया है, ये जी जी इसने कुछ भी किया है तो हक समझ के या हक खुलूस समझ से या के किया जो है। भी हो। जी 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 अगर मैं नसीमी मदरसे में पढ़ाता, जो मैं अपना इदारा भी बनाया हूँ, उसमें भी मैं जी आजकल नहीं पढ़ाता हूँ, जी जी मेरी इतनी मसरूफियत है। अगर हम्म, किसी नसीब मस्जिद में इमामत करते हुए जी जो मैंने काम किया है वो काम जी किया होता तो लोग क्या कहते कि उनके मदरसे मस्जिद में है, उनको मोटी तनख्वाह मिलती इसलिए उन्होंने ये किया, जी है या नहीं? तो जी मैं उनके किसी मदरसे मस्जिद में ना रहकर ये काम करके मैं बताना ये हमेशा ही चाहता हूँ कि मैंने जी जो कुछ किया खुलूस से किया है और सही समझ के किया है। जी सही समझ गया। जी समझ रहे क्या नहीं? जी जी हजरत। उसके बाद फिर जब मैंने उसको इस तरह जवाब दिया तो जी फिर उसने लिख के मुझे भेजा कर ये लोग चंदा बंद कर देंगे हाँ, तो तुम चलो तुम्हारा इदारा बंद हो कैसे जाएगा। चलेंगे, बंद हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहा कि मैं किसी नसीमी से चंदा नहीं लेता हूँ, और ना मैंने किसी नसीमी से जुमला कहा, मैं उसी राबजी से कहा। ये जी मेरा ये मेरी तीसरी क्लिप है, समझ रहे क्या अच्छा नहीं? ये अच्छा मेरी तीसरी, तीसरी के लिए। आप वो रिकॉर्डिंग जो तीनों को मिलाकर और मेरा फोटो लगा के जो वायरल किया है, आप जी खुद जी समझ गए होंगे कि क्लिप सबको एक साथ क्या किया गया है, जी जी मिलाया गया है, कहीं के मेरे वॉइस को डबलिंग भी कहा की गया गई है। अच्छा। तो उसको मैंने कहा अच्छी तरह सुन लो और जी ऐलान भी कर दो, मैं जी उसको मैं कह रहा हूँ जी कि कोई नसीब मुझको चंदा ना दे। मेरा कहने का मकसद ये था कि भाई हम कुछ भी काम करते हैं तो अल्लाह पे भरोसा करके करते करते हैं, हैं वाह, समझे बिल्कुल। क्या नहीं? जी हजरत। तो अल्लाह के बंदे मदद कर, तुम अगर यही सोच रहे हो तो मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम जी ऐलान कर दो। हाँ तो लोग इसको जो है समझने क्या नहीं। अच्छा जी फिर मैं आगे क्या कह रहा हूँ, जी कर दो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूँ मुझसे सारे नीम राबजी परेशान हैं परेशान है। जो जी नसीमियों में घुसे हुए हैं। भाई माने हर पीर के मुरीदों में जी कहीं राबजी घुसा है तो कहीं वहाबी घुसा है, कोई देवबंदी घुसा है, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? जी बिल्कुल सही बात। तो मैंने कहा तुम निम राबजियों ने सोच रखा था कि इस जी गिरोह में उलमा नहीं है, गुलाम जी हजरत सादात की तारीफ कर रहे हैं, इसका फायदा उठाते हुए जो है ऐसा वैसा कर दें। जी तो इसको क्या कर दिया, एडिटिंग करके वायरल करके, समझे क्या नहीं? जी हजरत। हाँ ये कर रहे हैं, तो मैं और कर रहे हैं तो करने दीजिए, हम क्या करेंगे? जी ये है असली असल बात। बात क्या, मुझे ये ऑडियो जो मिला है, मुझे हम्म, किसी धामनगर वाले ग्रुप ने मुझे भेजे। जी जी, खैर मैं ठीक कहती है, जो जैसा वायरल कर रहे हैं करने दीजिए। जी और इससे तो इतना मुझे सबक मिल गया जी जी कि आदमी को आइंदा क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसे इसका कैसे जवाब जीना हजरत है दीजिए। और कैसे नहीं जीना है, समझ रहे क्या नहीं? देखिए अच्छा जी दूसरी बात, जी मैं उस वक्त छत्तीसगढ़ के सफर में भी था। जी जी अच्छा मैं कुछ जलाली अमल में भी था, ठीक है? जी जी हाँ तो जब वो लोग फिर मुझे गाली गलौज किए तो मैं उस ग्रुप को फौरन क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। जी उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फोन करके बताया कि आपके ताल्लुक से इस तरह, जी अच्छा न मैंने दूसरे दिन जी फोन करके बताया कि आपके ताल्लुक से इस तरह जो है सब ग्रुप में वायरल हो रहा है, ये हो रहा है कि आपने नसीमे को एक बार कहा चंदा उंदा लेता नहीं वगैरह वगैरह फलां ढका, उन्होंने कहा। तो मैं सोचा शायद कि मैं इस तरह कह दिया हूँगा, मैं हम्म सोचा, मैं सुना नहीं, मेरे से वक्त भी नहीं था, मैं काफी मसरूफ था उस वक्त। तो हम्म मैंने चाहा कि भाई उम्मत में इंतशार ना हो सकते मैं कह दिया हूँगा, और मेरे पास वक्त भी नहीं था कि मैं उसको पलट कर पूरे तौर से सुनूं, और मैं तो खुद डिलीट भी कर दिया था, समझ रहे क्या नहीं? जी हजरत। पूरा ग्रुप ही को मैं क्या कर दिया था, डिलीट डिलीट कर कर दो। दिया था। अच्छा वो तो हमने एक साहब को बहरहाल, फिर भी मैंने उम्मत में इंतशार ना हो तो मैंने तौबा भी वायरल कर दी, समझे जी क्या नहीं? और मैंने वजाहत भी कर दिया कि मेरे इदारे में खास करके जो है नसीमियों का ही चंदा है। उसके बाद जी भी कुछ लोग जो है वावेला मचाए हुए, आप तो जानते हैं हाँ जी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप कुरान भी हाथ में लेके कह देंगे तो मानने वाले नहीं हम्म होंगे। कुछ जी लोग ऐसे होते हैं आप कुछ भी कह दे वो मान लेंगे। कुछ लोग जी ऐसे होते हैं कि आपकी बात समझने के बाद वो क्या करते हैं, जी मानते हैं।
جی اور جو لوگ نہیں مانتے ان کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہے جی یا جی نہیں؟ جی اور آپ کیسے ہیں؟ میں بس خاموش ہوں، اب سوچ لیا ہوں کہ آئندہ ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسی ہاں باتیں کرنی ہے، کیا جی کرنا ہے۔ اب جی لوگوں کو تو اتنا سوچنا چاہیے، جو آدمی اتنی محنت کیا ہے جی وہ جی وہ پھر کیسے چینج ہوگا؟ ہاں ہاں وہ جو ہے ایسی گندی بات ہمیں کیسے کہہ دے جی گا؟ جی جی اور ساری باتیں ہیں، اور کیا کہیں گے۔ اس کو زیادہ ہوا اڑا رہے ہیں غلام محمد کے لوگ۔ اب ہاں جو کرتے کون لوگ اڑا رہے ہیں، ہم کیسے کہیں گے؟ ہاں، ہم وہ تو میرے پاس جو اچھا آیا سنیے، آڈیو۔ جی 2014 میں جب ہم جی لوگ بریلی شریف گئے تھے جی جی تو اس وقت ہم لوگ فتویٰ سمجھنے کے لیے گئے تھے، جی تو ہم لوگوں سے زبردستی دستخط لیا گیا۔ جی لینے کے بعد ہم لوگوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ دوبارہ آئیے تو آپ کی بات سمجھی جائے گی، جی 2014 میں۔ 14 میں۔ تو اس وقت ہم لوگ پرانے فتوے پہ فتوے کی جی تائید کر دی تھی۔ وہاں جی سے آنے کے بعد پھر ہم لوگ کیا اس مسئلے کی تحقیق کی، پھر جی ہم اپنی اس تحریر سے رجوع بھی کر لیے، جی سمجھا نہیں؟ تو جی ابھی بریلی میں کوئی مرزا معظم ہے، اس جی کو آڈیو بنا کر ایڈیٹنگ کر کے وائرل کر رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنا فیصلے سے رجوع کر لیا ہے۔ تو جی بھائی جو آپ اگر یہی آپ کی سمجھ ہے تو سمجھ رکھیے، اللہ نہ پائے مورا ننگست، نہ جائے خدا تنگست، نہ میں جی پاؤں کا لنگڑا ہوں، نہ خدا کی زمین تنگ ہے۔ جو جی ایڈیٹنگ والا، جی جی کہیں جی میں یہ کہا ہوں کیا کہ میں نے کبھی نسیمیوں کا چندہ نہیں لیا؟ نہیں ایز نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ اسی کو اڑا رہے ہیں کہ میں نے ایسا کہا ہے۔ ٹھیک ہے سید صاحب، جی جی السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام۔